हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज सॉइल। तो सॉइल, it is a loose rock material which forms the thin upper layer of the earth's crust, and it consists of weathered rock particles, decaying organic matter, living organisms, water and air. So this is soil. Why it is important? Soil is extremely important, especially the upper layer. जो top layer होता है soil का बहुत fertile होता है क्योंकि इसमें organic matter होता है and it supports agriculture. इसलिए ये immensely important हो जाता है. It provides us with food. It helps in growth of crops and vegetation. And ये जो हमारे सारे primary food products होते हैं जैसे cereals, fruits, vegetables, all are grown in soil. So students, we can see from this that soil is an extremely important natural resource. If you look at these two definitions, first one is pedogenesis. It is a process of soil formation, and another one is pedology. It's a branch of earth science that deals with the study of different types of soil. So there are soil scientists. They study about the soil, its nature, how it is formed, and which are the crops that can be grown, how the soil changes with time. So there are so many things they learn about soil in pedology. So let's see the factors. कौन से factors होते हैं जिन पे soil formation depend करता है? Very important, most important, that is climate. तो climate अगर heavy rainfall है, very heavy rainfall or extreme temperature or high temperature, it helps in quick breaking of rocks and the soil formation process becomes very speedy. तो अगर कहीं किसी जगह का क्लाइमेट है जहाँ रेनफॉल हैवी है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो यहाँ पे जो है सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत तेज़ होगा, फास्ट होगा. सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द पेरेंट रॉक. सॉइल, ऑल ऑफ अस नो कि सॉइल जो है रॉक्स के टूटने से बनता है. तो जैसा नेचर रॉक का होगा वैसा ही सॉइल का होगा. रिलीफ और टोपोग्राफी. यहाँ पे अगर हम रिलीफ और टोपोग्राफी की बात करें तो यहाँ बात हो रही है स्लोप की. एरियाज विथ जेंटल स्लोप, यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन थोड़ा स्लो होगा. लेकिन एरियाज विथ स्टीप स्लोप, यहाँ पे वेदर्ड मटेरियल जो है रॉक्स टूट कर जल्दी they will fall down the slope quickly because of steep slope. तो यहाँ इस steep slopes वाले areas में soil formation will be faster compared to the areas of gentle slope. The fourth factor is time. तो जितना पुराना soil होगा उतना ज़्यादा वो mature होगा because time helps the soil to become finer, more organic matter is being added to the soil. The soil becomes more mature and more fertile. उसमें ज़्यादा nutrients होता है और soil का जो texture है वो और ज़्यादा fine हो जाता है समय के साथ साथ because of weathering. So these are the 4 factors that affect soil formation. Now if you have a look at the layers of the soil, that is soil profile. तो सबसे पहले होता है organic matter, that is the top soil. Top soil has the organic matter. Then the subsoil and finally the bedrock. And before topsoil, first layer, subsoil, there is a substratum also, and then finally the bedrock. Bedrocks are unweathered rock. You can see here they are unweathered rock. They are the parent rock. इसी rock के टूटने से बना subsoil और topsoil. Topsoil में organic matter होता है क्योंकि यहाँ इसमें dead remains of plants and animals ये मिल जाते हैं, and this makes the top soil very fertile. We talk about the soil types in India. We have loamy soil, sandy soil and clayey soil. The sandy soil has about 60% of sand and 10% of clay. So ये जो soil होता है it cannot retain water. अगर इसमें पानी डालो तो पानी it cannot hold water because it has 60% of sand. If we talk about clay soil, it has high proportion of clay. तो क्लेई सॉइल में अगर पानी मिल जाए तो ये बहुत स्टिकी यानी चिपचिपा हो जाता है.
And loamy soil is a fine soil and it is a mixture of sand and clay. So it's a good quality soil. तो ये जो सॉइल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया में, अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ये सारे सॉइल्स जो है इन लोम, सैंड और क्ले, इनके ही डिफरेंट मिक्सचर्स हैं. उनमें सारे सॉइल प्रेजेंट होते हैं. ये सारे सॉइल अलग अलग प्रोपोर्शन में. सो लेट अस सी द टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया. सो वी हैव अलूवियल सॉइल, द मोस्ट फर्टाइल, एग्रीकल्चरली सबसे ज़्यादा फिट है. ब्लैक सॉइल जो डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है, इट्स अ वॉल्केनिक सॉइल. रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल. तो ये टिपिकल जो कॉमन सॉइल है वो इंडिया में पाए जाते हैं. फर्स्ट 4 पढ़ना है. जो फर्स्ट 4 है दैट इज इन द सिलेबस. सो in this chapter we are going to learn about alluvial and the black soil. So this alluvial soil is a mixture of sandy, loamy and clay soil. लेकिन इसका मिक्सचर प्रोपोर्शन ऐसे होता है कि इट इज़ वेरी फर्टाइल, इट कैन रिटेन वाटर, पानी होल्ड कर सकता है और एग्रीकल्चरली बहुत प्रोडक्टिव है. इंडिया में 40% जो है टोटल एरिया वो है अलूवियल सॉइल. और अलूवियल सॉइल अगर इंडिया में देखें तो 3 जगहों पर मिलता है. डेल्टाज में, रिवर डेल्टाज में, जिसको हम कहते हैं डेल्टाइक अलूवियम. पेनिनसुलर इंडिया में जो है, साउथ इंडिया में कोस्टल स्ट्रिप्स में मिलता है कोस्टल अलूवियम, और रिवर वैलीज में मिलता है इनलैंड अलूवियम. तो ये 40% टोटल एरिया ऑक्यूपाई करता है. अगर इनलैंड अलूवियम की बात करें तो इट इज़ फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा. इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स पे मिल जाता है इनलैंड अलूवियम. और ये इंडिया के किन राज्यों में है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान एंड गुजरात. इन राज्यों में ये सॉइल पाया जाता है इन द रिवर वैलीज. इसको कहते हैं इनलैंड अलूवियम. अगर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे मिलता है डेल्टाइक अलूवियम. यहाँ डेल्टास में डेल्टाइक अलूवियम पाया जाता है. इफ यू टॉक अबाउट पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया में जो alluvial soil है, it is confined to the coastal strips, यानी coastal areas में पाया जाता है. It is porous, clay-like and of dark color. तो इनके characteristics है, ये ज़्यादातर porous होते हैं, clay-like and they are of dark color. So these are the 3 types of alluvium जो कि पाया जाता है इंडिया. अब अगर बात करें नेचर की, alluvial soil के नेचर की, तो it is found at a depth of 500 meters. It's very fertile and suitable for agriculture. तो शुरुआत से मैंने कहा it is the best soil और इसमें लगभग सारे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. Variety of vegetation can grow in this soil. Alluvial soil is a transported soil. Why? Because river जो है, रिवर कैरी करके ले जाता है अलूवियम को, सेडिमेंट्स को, और वहाँ वो कहीं ले जाकर दूर, अपने ओरिजिन से दूर ले जाकर ये सॉइल बनता है. इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल. इट इज़ कोर्सर इन अपर सेक्शन, यानी जहाँ ये बनता है अपर एरिया में अगर बन गया तो ये कोर्स है. इसका जो पार्टिकल्स है दे आर बिगर एंड एज सुन एज दे रीच द डेल्टा, जो डेल्टा है हाईलैंड से शुरू होता है और जो डेल्टा के पास जो अलूवियम पाया जाता है वो बहुत ही फाइन होता है क्योंकि ये काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर चुका होता है. तो द सॉइल बिकम्स एक्सट्रीमली फाइन. इट इज़ लाइट टू डार्क इन कलर, कलर वैरी करता है. इट इज़ रिच इन पोटैश एंड ह्यूमस, इट इज़ रिच इन पोटैश एंड ह्यूमस बट पुअर इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन. तो कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो इस सॉइल में है और फर्टाइल बनाते हैं, बट कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल में नहीं होते हैं. इट्स हाईली फर्टाइल एंड गुड फॉर बोथ खरीफ एंड राबी क्रॉप्स. तो खरीफ क्रॉप्स जो है वो हम समर में उगाते हैं इंडिया में, और विंटर्स के दौरान जैसे कि वीट है, वीट हम ग्रो करते हैं विंटर्स में, तो इट्स अ राबी क्रॉप. अलूवियल सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन एंड जूट. और जिन स्टेट्स में पाया जाता है उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सो दीज आर द स्टेट्स वेयर अलूवियल सॉइल इज फाउंड. अलूवियल सॉइल इज ऑफ 2 टाइप्स. एक होता है बांगर एंड द अदर वन इज खादर. दोनों में डिफरेंस क्या है? बांगर को हम कहते हैं ओल्ड अलूवियम और खादर को कहते हैं न्यू अलूवियम. सो द रीजन इज बांगर इज फॉर्म्ड
far away from the river basin. The soil formed far away from river basin. कह सकते हैं हम deltas. जबकि यहाँ the soil is formed close to the basins, यानी deltas. So जो soil पहले बन चुका होता है वो old alluvium में coarser होता है. They are less fertile and not suitable. They are not very much suitable for agriculture. लेकिन जो खादर होता है they are very fertile, क्योंकि ये fine grains होता है. इसका grains जो होता है they are fine grained because they travel to a great distance, और डेल्टा के पास जाके वो बनता है. इसीलिए खादर न्यू एलुवियम है and it is very fertile compared to Bangar. Bangar has coarse grains. Now children, the next type of soil that we are going to learn is black soil. नाम है black, color भी black होता है and it is a volcanic soil. Origin जो है इसका volcanic है. It is formed by from the weathering of igneous rocks. So it occupies only 16% of the area. और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्लैक सॉइल वो है डेक्कन प्लेट्यू, क्योंकि डेक्कन ट्रैप जो है वो वॉल्केनिक लावा से बना है, तो उससे जो सॉइल बना वो है ब्लैक सॉइल. दिस इज कॉल्ड रेगुर. और ये जो वर्ड रेगुर है इसको हमने तेलुगु वर्ड रेगुडा से डिराइव किया है, और इसका मतलब है दे आर रेसिडुअल सॉइल. ठीक है, दे आर रेसिडुअल सॉइल बिकॉज ये जहाँ पे इसका पेरेंट रॉक है वहीं पे ये सॉइल बना है, इसलिए दे आर रेसिडुअल और इन सिटू सॉइल. दे आर ऑल्सो इन सिटू सॉइल. वाई? बिकॉज दे हैव फॉर्म्ड नियर द पेरेंट मटेरियल. कहाँ पाया जाता है? इंडिया में बेसिकली डेक्कन ट्रैप में, एंड दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेन्यूडेशन ऑफ लावा, वॉल्केनिक लावा. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यू नो, दे बिकम वेरी स्टिकी. they retain moisture and becomes very sticky when wet. क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्ले होता है, इसीलिए ये स्टिकी हो जाते हैं. जब पहली बारिश होती है तो ये स्टिकी हो जाते हैं. दे फॉर्म लॉन्ग डीप क्रैक्स व्हेन ड्राई. लेकिन जब बारिश का मौसम नहीं होता है तो खुद ही दे हैव अ सेल्फ प्लॉइंग कैपेसिटी. वो उनको प्लॉ नहीं करना पड़ता, उनमें खुद से दरार हो जाती है ताकि हवा अंदर जा सके. तो एरिएशन के लिए दे form deep cracks during dry season, so they have a self plowing capacity. और ये एक question भी है, how can we say that the black soil has self plowing capacity? Because they form long deep cracks when dry, so it helps in aeration. So it can be said that they have a self plowing capacity. Black soils जो होते हैं वो rich होते हैं iron में, potash, calcium, magnesium, and their color varies from black to chestnut brown, यानी dark brown color. They are deficient in phosphorus, nitrogen and humus. क्योंकि ये इनमें बहुत clay होता है, so they can retain moisture for long duration. So artificial irrigation is not necessary. Black soil और alluvial soil के केस में they can retain moisture, so a lot of artificial supply of water is not necessary in case of alluvial and black soil. So let's see more regions जहाँ ये black soil India में है. I already told you it is found in the Deccan Plateau in the states of Maharashtra, Gujarat, Western Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. इन सारे states में black soil पाया जाता है. Which are the crops that grow? तो दिस इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉइल इवन विदाउट यूजिंग फर्टिलाइज़र. बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि काफ़ी फर्टाइल होता है और बहुत सारे क्रॉप्स इसमें ग्रो कर सकते हैं. वेरी मच सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन. यू नो चिल्ड्रन, वी ऑल्सो कॉल इट ब्लैक कॉटन सॉइल. ब्लैक सॉइल को हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं because it is very extremely suitable for growing cotton. Apart from cotton, it also suits for growing jowar, wheat, sugarcane, oilseeds, fruits and variety of vegetables. So these are the crops that can be grown in black soil. I told you black soil has a self-plowing capacity or self-plowing quality. This is a very important question. So black soil is known for its self-plowing quality as deep cracks are formed during dry period which helps aeration. यानी air को enter करने में मदद करता है which is very important for growth of crops.
It is much moisture retentive and becomes sticky. So soil needs to be tilled after the first rain. फर्स्ट रेन के बाद वो क्ले कंटेंट के कारण बहुत स्टिकी हो जाता है, इसलिए टिलिंग ज़रूरी होती है. बट इट हैज़ अ सेल्फ प्लॉइंग कैपेसिटी बिकॉज इट डेवलप्स क्रैक इन द ड्राई सीजन. So students, this is all about the alluvial and black soil in India. We'll learn about the rest in the next chapter. Thank you. See you all in the next class.